Afternoon everyone, welcome to my channel Management Ki Pathshala. So today we are going to discuss the new topic, that is theory of investment. So here we are going to discuss, here we will be going to know what is the investment, or what is the theory of investment. So let's begin our session. Now in content we will discuss that on which topic we are going to discuss. So here we are going to discuss the theory of investment. Then point number 2, we are going to discuss management efficiency of capital and measures to promote investment. In the third point, we are going to discuss internal rate of return. Under internal rate of return, we are going to discuss classical, non-classical and Keynesian control. So let's discuss all these things. Now we are going to discuss what is the theory of investment. So let's see by definition. The marginal efficiency of capital displays the expected rate of return on investment at a particular given time. The marginal efficiency of capital is compared to the rate of interest. Now basically what is the meaning of investment? The money which is left behind, or the money which we save and we invest in somewhere, or we invest where in the near future we are going to get a maximum return, is termed as investment. So the marginal efficiency of capital, the efficiency of capital which is extra, which we have margin, which the extra capital which we are having, and what we do with that capital, we invest those capital because we will get the maximum rate of return at a particular given period of time, or at a particular time. The marginal efficiency is compared, the capital is also compared with the rate of interest. It means that whatever capital we are investing today, we will get a maximum return from that capital. I will tell you in Hindi, I will explain you in Hindi also. मार्जिनल इफिशियंसी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल बच जाता है यूज़ करने के बाद, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं. और क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि एक समय अंतराल के बाद हमें मैक्सिमम रिटर्न उससे मिले और एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले, ताकि उसका यूज़ हम कहीं पर भी कर सके. और हम दोनों चीज़ के बीच कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने का मतलब होता है डिफरेंस. हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है. यानी कि जब हमारी मैच्योरिटी डेट आती है, तो मैच्योरिटी डेट पर वो पैसा हमारा कितना हो जाता है. क्लियर? कीनीज डिस्क्राइब द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एज. कीनीज ने जो है, कीनीज ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का. तो देखते हैं उन्होंने क्या डिफाइन किया है इसको लेकर. The marginal efficiency of capital is equal to that rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital asset during its life just equal to its supply price. यानी जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है, वो बराबर होता है रेट ऑफ डिस्काउंट के, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के, विच, और ये जो होता है ये प्रेजेंट वैल्यू को दर्शाता है. और उसकी जो सीरीज है, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारा चलता जाता है, उस पर डिपेंड करता है. यानी हम जितने दिनों का उससे इन्वेस्ट करते हैं, या जितने दिनों के लिए हम कहीं पर भी उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो वो कितने समय के लिए हम रख रहे हैं उस पैसे को, या कहीं पर भी हम इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते हैं. और ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, या हमें एक एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, एक पूर्वानुमान हम लगाते हैं कि हमें कितना रिटर्न उससे मिलने वाला है. और वो इक्वल होता है किसके, वो किसके बराबर होता है, वो सप्लाई प्राइस के. यानी हम जो सप्लाई कर रहे हैं, यानी हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो पैसा हमारे पास आ रहा है, वो क्या वो बराबर है या उससे ज़्यादा है. नाउ दिस थ्योरी सजेस्ट इन्वेस्टमेंट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय. तो इस थ्योरी, जो हमने इन्वेस्टमेंट थ्योरी की बात की, ये दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा होती है. पहला, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी हमारे पास कितना एक्स्ट्रा कैपिटल है, यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है जिसका यूज़ की हमने नहीं किया, वो कितना अमाउंट में हमारे पास है. और दूसरा चीज़, द इंटरेस्ट रेट, यानी किस इंटरेस्ट रेट पर, what is the interest rate we are getting from that particular amount what we are investing today. हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कल हमें किस इंटरेस्ट रेट पर वो मिलने वाला है. Generally, a lower interest rate makes investment relatively more attractive. और जो लो इंटरेस्ट रेट है
वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कम पैसे में, और अगर ज़्यादा पैसे कम पैसे में अगर हमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उस पर रिस्क की चांसेस ज़्यादा कम होते हैं। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ये जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कम इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ का तो उसका रिस्क भी उतना ही कम है। तो लोग ज़्यादातर जो लोअर इंटरेस्ट रेट है उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ पर, लोग ज़्यादा उस चीज़ को परचेस करते हैं। If interest rate were 3%, then firms would need an expected rate of return at least 3% from their investment to justify the investment. अगर इंटरेस्ट रेट 3% है, सपोज इफ इंटरेस्ट रेट इज 3%, देन द फर्म नीड्स दैट, और दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट द सेम इंटरेस्ट रेट on which we are investing. If we are investing on 3%, then the company is expecting, or the industry is expecting that in the future or in the given period of time we will get the at least 3% from the investment which we had done today. हमने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है, हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि अगर 3% पे कंपनी एग्री हुई है हमारी मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें जो है वो 3% रेट ही मिलेगा। ये जस्टिफाई करता है इन्वेस्टमेंट को, यानी हम जिस रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही रेट ऑफ रिटर्न पे हमें वो वापस हमारा पैसा हमें मिले। इफ द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल वाज लोअर देन द इंटरेस्ट रेट, देन द फर्म वुड बी बेटर ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग बट सेविंग द मनी। अगर मार्जिनल इफिशियंसी से नीचे है, अगर हमारा जो मार्जिन मनी है, हमारा जो एक्स्ट्रा मनी है, अगर हम वो इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट नीचे है, वो कम है इंटरेस्ट रेट, तो कंपनी ये सोचती है या फर्म ये सोचती है कि बेकार है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि हम अपने पैसे को सेव करके रखें ताकि हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकें या अपनी बिजनेस में ही हम उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट, नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिटर्मिनेशन। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे कि हम IRR भी बोलते हैं। तो देखते हैं, आइए हम देखते हैं इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिटर्मिनेशन क्या होता है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR is a discounting cash flow technique which gives a rate of return earned by a project. इसका मतलब होता है ये एक रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, यानी हमारी जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है उस पर डिस्काउंटिंग टेक्निक है ये, इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। और जो हम जो रेट ऑफ रिटर्न जो देते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट से जब हम रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है तो हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह का ये टेक्निक्स है, क्या ये बेनिफिशियल टेक्निक्स है। The internal rate of return is the discounting rate where the total of initial cash outlay and discounting cash inflows are equal to zero. In other words, it is the discounting rate at which the net present value is equal to zero. नेट जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये डिस्काउंटिंग रेट है। यहाँ पर जो टोटल इनिशियल कैश जो हमारा स्टार्टिंग कैश है जो हमारा बाहर गया है और जो हमारी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है जो कैश हमारे अंदर आया है आर इक्वल टू जीरो। यानी कि इसका मतलब होता है हम जितना कैश इन्वेस्ट किए या जितना कैश हमने अपने प्रोजेक्ट में लगाया उतना ही वो हमें वापस मिल गया। इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज किया गया है इट इज इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स, वहीं दूसरे शब्दों में इट इज द डिस्काउंटिंग रेट। ये जो है ये डिस्काउंटिंग रेट है, यानी इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। वेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो इज इक्वल टू जीरो, यानी कुछ भी नहीं है, यानी हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही हमें वापस मिला, यानी अभी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वी यूज द सेम फार्मूला एज NPV। हम जो कंप्यूट करते हैं यानी हम जो कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम सेम फार्मूला यूज करते हैं जो हमने NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम यूज करते हैं। टू डिराइव द IAR को डिराइव करने के लिए एन एनालिस्ट हैज टू रिलाई ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। जो इसके एनालिस्ट होते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे, यानी हम जो ट्रायल करते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया और उस पर जो हमें एरर मिले यानी कितनी गलत हुई हमारी, तो इस मेथड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड कैन नॉट यूज़ एनालिटिकल मेथड। और हम यहाँ पर एनालिटिकल मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। वी नेवर यूज़ और वी डू नॉट यूज़ एनालिटिकल मेथड इन दिस प्रोसेस। विद ऑटोमेशन वेरियस सॉफ्टवेयर, ये एक ऑटोमेशन टेक्निक है जो काफ़ी सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऑल्सो अवेलेबल टू कैलकुलेट IAR। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी हम IAR को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एक्सेल देयर इज अ फाइनेंशियल फंक्शन दैट यूजेस कैश फ्लोज एट ए रेगुलर इंटरवल फॉर कैलकुलेशन। एक्सेल में हम
इट इज़ और वहाँ पर एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है, वहाँ पर एक फाइनेंशियल फार्मूला होती है, उस फार्मूला को अगर हम सेट कर देते हैं तो उसको थ्रू भी हम इसे कैश फ्लो को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता चल जाता है कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें कितना मिला, यानी हमने जो प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट से हमें किस रेशियो में और कितना हमें रिटर्न वापस मिला है। नेक्स्ट, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ हमने स्लाइड में IAR का फार्मूला लिखा है। IAR का फार्मूला होता है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 plus RI minus initial investment, where cash flows is equal to cash flow in the time period, यानी cash flow यानी cash inflow and cash outflow जो है within a given period of time period के अंदर जो हुआ है। R is equal, R represent डिस्काउंट रेट, उस पर कितना डिस्काउंट मिला है। I is equal to टाइम पीरियड, वो कितने समय के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। अगर इस फॉर्मूले को हम देखें IRR is equal to cash flow 1 plus R is to the power I minus initial investment. This gives us the figure that on what ratio and on what basis we are getting internal rate of return. Next, the rate at which the cost of investment and the present value of future cash flows match will be considered as the internal ideal rate of return. The rate यानी किस रेट पर हम जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी कॉस्ट कितनी है, वो किस रेट पर हमने उसे इन्वेस्ट किया है अपने मनी को, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और कैश की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी जिस बेसिस पर हमने कैश फ्लो में पार्टिसिपेट किया है, यहाँ हमारे यानी हमने जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम मैच करते हैं, यानी क्या वो मिल रहा है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है, विल बी कंसीडर्ड एज द आइडियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर वो मिल रहा है तो हमारा आइडियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। ए प्रोजेक्ट दैट कैन अचीव दिस इज ए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट जो हम अचीव कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, जब उसकी अचीवमेंट की बात आती है, उसके रिजल्ट की बात आती है, तभी हम सिग्निफाई कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। इन अदर वर्ड्स, वहीं दूसरे शब्दों में, एट दिस रेट द कैश आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल। कैश जो हमारा बाहर जा रहा है और जिस प्रेजेंट वैल्यू और अभी के वैल्यू पे जो कैश हमारा अंदर आ रहा है, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। अगर वो इक्वल है यानी बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो हम जो है हमारी प्रोजेक्ट जो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी हमारी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी है, हमारी प्रोजेक्ट बहुत आकर्षक है और आगे चलकर हम अच्छा रिटर्न इससे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लासिकल, न्यो क्लासिकल एंड कीनेसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द थ्री थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, that is the classical capital theory, the neoclassical loanable funds theory and the Keynesian liquidity preference theory have been differentiated below. यहाँ पर हम तीन तरह की theories of interest को डिस्कस करने वाले हैं, classical capital theory, neoclassical loanable fund theory and the Keynesian liquidity preference theory. इन तीनों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी क्या है। इसमें हमने क्या किया है, इसे समझने के लिए, क्लासिकल थ्योरी को समझने के लिए हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हम स्टेप वाइज इसे डिवाइड किया है ताकि हम आपको आसानी से इसे समझा सकें। डिफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की क्या डिफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड पे फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, यानी इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड, वो एक रिवार्ड है, वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम पे करते हैं, जो हमें पेड किया जाता है, हम जो कैपिटल यूज़ करते हैं, यानी हम जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो हमें रिटर्न मिलती है वो एक रिवार्ड के फॉर्म में हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, उसका नेचर किस तरह का है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरेस्ट इज ए रियल नॉन मॉनेटरी फेनोमेनन एंड द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज अ रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है हमारा थ्योरी, यहाँ पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया इंटरेस्ट जो है वो एक नॉन रियली इज रियल जो है वो नॉन मॉनेटरी फेनोमेनन है, और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पर जो थ्योरी है उसी के बेस पर हमें रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या डिटर्मिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वालिटी बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल।
हमारी जो डिटर्मिनेशन है यानी हमारा जो लक्ष्य है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो क्या है, वो बेस करता है हमारा डिमांड और सप्लाई पे। यानी डिमांड किस तरह की है मनी की और सप्लाई किस तरह का है, यानी जैसा डिमांड है क्या उसी तरह का सप्लाई है, या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी जिस तरीके की डिमांड रहेगी उसी तरह की सप्लाई भी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, डिमांड साइड। डिमांड साइड के अंदर हम देखते हैं इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर कैपिटल इज द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी जिस तरह की डिमांड की कैपिटल की डिमांड है उसी तरह की इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा तो हमें अच्छा पैसा वापस मिलेगा, यानी हमें अच्छी रेट ऑफ रिटर्न वापस मिलेगी, विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और ये इन्फ्लुएंस करता है, ये हमें आकर्षित करता है, ये हमें मोटिवेट करता है कि वो उस पर हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिले, यानी अच्छी प्रोडक्टिविटी हमारी रहेगी कैपिटल की, हमारा कैपिटल पे अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। डिमांड फॉर कैपिटल इज अ नेगेटिव फंक्शन। कैपिटल की डिमांड जो है ये एक नेगेटिव फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट, सप्लाई साइड। इन द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के अंदर द सप्लाई ऑफ कैपिटल कम्स फ्रॉम सेविंग। सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो सेविंग के फॉर्म में आती है। क्यों? क्योंकि जब भी सप्लाई होगी, जब भी मेरे तरफ से पैसे जाएगी या किसी के भी तरफ से पैसे जाएगी, वो क्या है, वो सेविंग के फॉर्म में होती है। हमारे पास जो पैसा बचा होता है हम उसी को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है, वो है सप्लाई ऑफ कैपिटल विच डिपेंड्स अपॉन विलिंगनेस एंड पावर टू सेव। और ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हम कितने इच्छा शक्ति है हमारे पास, हम कितने इच्छुक हैं और हम कितना, हमारे पास पावर है, हमारे पास कितना क्षमता है उस मनी को सेव करने का। क्योंकि हम जिस तरीके से मनी को सेव करेंगे मार्केट के अंदर, हम उसी रेशियो में या उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मनी को इन्वेस्ट भी करेंगे या सेव भी करेंगे। द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज अ पॉजिटिव फंक्शन। सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है ये पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि इसीलिए पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि जिस तरीके से हम, जिस रेशियो में हम कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे या कैपिटल को हम सप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर, उसी रेशियो से हमें या उसी के अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें वापस जो हमारा पैसा आएगा हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है ज़्यादा मिलेगा। सिक्स्थ पॉइंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। According to the classical economics के according, rate of interest is the equilibrating force between saving and investment। ये क्या है, ये इक्विलिब्रेटिंग फोर्स है, यानी एक इक्वली फोर्स है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। हमारे पास यहाँ तक कि इसमें यह बताया गया है कि जिस तरह की हमारी सेविंग्स रहेगी उसी के रेशियो में या उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर हमारी सेविंग्स अच्छी है तो हम अच्छे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हमारी सेविंग्स थोड़ी खराब है तो हमें, यानी सेविंग्स खराब का मतलब अगर हम कम सेविंग कर रहे हैं तो हम कम ही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रोल ऑफ मनी। मनी का क्या रोल है यहाँ पर? द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसीडर्ड मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है यानी पैसा जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आज जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मनी फिर वापस वो हमें रिटर्न के फॉर्म में मिलेगा। एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। और यहाँ पर स्टोर वैल्यू का कोई फंक्शन नहीं है, यानी हम जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये क्या है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज किस फॉर्म में है? हम आज मनी को सपोज 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम कोई भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वापस वो हमें 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही वापस मिलेगा, यानी एक्सचेंज है। यानी मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। इसमें स्टोर की वैल्यू की कोई नहीं है। स्टोर वैल्यू का मतलब होता है जो हमारे स्टोर में पड़े हुए सामान है, तो उससे हमें, तो वो क्या होता है, वो हमारा डे बाय डे डिटोरिएट ही करता जाएगा, उससे हमें कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा या कोई भी मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें हैवी रिटर्न मिलता है। नाउ 8th पॉइंट, मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मिनिमम लेवल क्या होगा? द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिड नॉट बिलीव इन एनी मिनिमम लिमिट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने उन्हें ये विश्वास नहीं है और उन्होंने ये बताया कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। हम किसी भी लिमिट पर वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा वापस भी ले सकते हैं। एंड एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कई बार हम एक्सेप्ट उस तरह की पॉसिबिलिटी को करते हैं या उस तरह के प्रपोजल्स को करते हैं जहाँ जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर हम कोई परचेजिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ हम जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर सपोज मुझे एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, अगर रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट 20,000 है या 30,000 है, तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करता हूँ? जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। यानी जिस अमाउंट में वो रेफ्रिजरेटर है उसी उतना ही अमाउंट मुझे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पे करना हो।
नाउ स्कोप ऑफ थ्योरी, इसका क्या, इसके थ्योरी का जो है क्या स्कोप है? द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज ए लिमिटेड स्कोप, इसका लिमिट स्कोप जो है बहुत ही लिमिटेड है, यानी काफ़ी कम है इसका। बट इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पर ये एज्यूम करता है, पर ये बेस करता है सबसे ज़्यादा फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी पूरी रोजगार पे। नाउ रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है या रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके? द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज अ रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू विच, ये रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये रियलिटी को फॉलो करती है, अकॉर्डिंग टू विच द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द रियल फैक्टर्स, और इसकी जो इक्विलिब्रियम रेट है वो रियल फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, यानी मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन होगी, मार्केट की जिस तरह की कंडीशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज द रियल सेविंग एंड रियल इन्वेस्टमेंट, हम कितना सेव कर रहे हैं और कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट कंप्लीटली इग्नोरेंस द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द मनी, और ये कंप्लीटली इग्नोर करता है, ये कंप्लीटली नज़रअंदाज करता है, और इसका जो रोल प्ले करता है मनी, यानी हमारा पैसा किस तरह का रोल प्ले करता है। एंड बैंक क्रेडिट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या बैंक क्रेडिट, अगर हम बैंक से क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट पर उधार लेते हैं कुछ भी, तो वो किस इंटरेस्ट पर हमें देता है? इट रिगार्ड्स मनी एज न्यूट्रल, तो ये मनी को न्यूट्रल रिगार्ड करता है, इसीलिए क्योंकि कई बार हमारा पैसा डूब भी जाता है, कई बार हमारा पैसा ऊपर भी हो जाता है, तो इसीलिए न्यूट्रल हम इससे ट्रीट करते हैं। ए मेयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल हमें उसका रिटर्न मिलेगा। एंड डज नॉट असाइन एनी इंपॉर्टेंस ऑफ होर्डिंग्स, और इसके लिए कोई भी होर्डिंग का जरूरत नहीं है, यानी हम किसी भी तरह की होर्डिंग्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में। न्यू क्लासिकल थ्योरी बेसिकली जो है रिवार्ड है, ये लोनेबल फंड्स है, यानी हम जो फंड्स लोन के फॉर्म में लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स। इंटरेस्ट जो है एक रिवार्ड के फॉर्म में है लोनेबल फंड्स के लिए, यानी हम जो फंड लोन पे लेते हैं उससे हमें, या हम जो, या बैंक्स जो हमें, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें जो लोन देती है, वो एक रिवार्ड के फॉर्म में है, क्योंकि कल बैंक को हमसे रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न जो है वो जो हमसे रिटर्न लेती है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे लेती है, और उनके लिए सेम फॉर्म वो रिटर्न जो है एक इंटरेस्ट का काम करता है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह का नेचर है इसका? अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरेस्ट इज अ रियल कम मॉनेटरी फेनोमेनन, ये एक रियल है और मॉनेटरी फेनोमेनन है, क्योंकि ये मनी के फॉर्म में ही रिटर्न होगा। एंड द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज अ रियल कम मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इस इंटरेस्ट की जो थ्योरी है वो रियल कम मॉनेटरी थ्योरी है, यानी रियल भी है और उसके साथ साथ मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी पैसे से ही इसका इंटरेस्ट हम पे करते हैं। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या डिटर्मिनेशन है? अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वालिटी, इसका जो इक्वालिटी है यानी बराबरी है, ये डिपेंड हमारा करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी जो फंड्स हमारा या जो लोन है, लोनेबल अमाउंट है, वो हम किस तरह का डिमांड है मार्केट में, किस तरह से लोग किस तरीके के लोन को चाहते हैं, और सप्लाई किस तरह का है, यानी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से उस पैसे को सप्लाई करती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, डिमांड साइड, अब हम यहाँ पर डिमांड साइड की बात करेंगे। इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी की जब हम बात करेंगे, द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी लोनेबल फंड्स का जो डिमांड होता है वो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी किस तरह का डिमांड है, ये लोग किस तरह से, लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्या डिमांड है, लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। कंजम्पशन एंड होल्डिंग्स, यानी ये कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन पर डिपेंड होता है, यानी कंज्यूमिंग कैपेसिटी पर डिपेंड होता है, कहाँ कंज्यूम वो करना चाहते हैं, कहाँ वो यूज़ करना चाहते हैं। डिमांड फॉर लोनेबल फ्लूइड्स आर ऑल द थ्री पर्पस इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो पिछले 3 टर्म को हमने देखा तो ये क्या है, ये नेगेटिव फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोनेबल फ्लूइड जो हमारा है, यानी फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड का मतलब जो हमारे पास अभी करंट में मनी है, यानी जो हमारे पॉकेट में अभी पैसा है, तो ये एक नेगेटिव फंक्शन है इंटरेस्ट का, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है हमें। सप्लाई साइड, इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम सेविंग, तो यहाँ जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो कहाँ से आता है, वो सेविंग से आता है, डिसहोल्डिंग से आता है, बैंक क्रेडिट से आता है और डिसइन्वेस्टमेंट से आता है। द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज इज अ पॉजिटिव फंक्शन,
यहाँ जो लोनेबल फंड्स का जो सप्लाई है वो उसके जो सोर्स हैं उसका जो मीडियम है वो पॉजिटिव फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उससे पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आज जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नाउ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उनके थ्रू हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इक्विलिब्रेटिंग फोर्स बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर दो ये जो है ये डिपेंड करता है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी जिस तरह की हमारी सेविंग होगी उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि अगर हमारी सेविंग कम है हम कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर हमारी सेविंग अच्छी है हमने ज़्यादा अमाउंट में सेव करके रखा है तो हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ मनी। द न्यू क्लासिकल थ्योरी टुक इनटू कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी फैक्टर्स। इसके कई सारे, जैसा कि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो जो कंसिडरेशन में लिया है इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वो कैश, क्रेडिट, होर्डिंग्स, ईटीसी है। यानी कैश है जो कैश के फॉर्म में मनी है, क्रेडिट जो उधार के फॉर्म में और होर्डिंग्स के फॉर्म में, वाइल रिमेनिंग एसेंशियली ए क्लासिकल सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। और बाकी बचा हुआ जो है वो क्लासिकल सेविंग इंटरेस्ट, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, किस तरीके का है, उस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, उसकी थ्योरी पर डिपेंड करता है। इट रिगार्ड्स मनी एज ए फ्लो। ये ट्रीट किया जाता है मनी एज ए फ्लो, यानी अगर मनी है तो वो फ्लो करेगा, यानी कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। यानी कैश अगर अंदर आता है तो कैश हमारा बाहर भी जाएगा, और अगर हमारा कैश बाहर जाता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर आता है या हमारे पॉकेट के भी अंदर आता है। सिंस द सप्लाई ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ जो मनी की सप्लाई होती है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड होता है, कितने समय के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो में हमने इन्वेस्ट किया है, ये उस पर डिपेंड होता है। मोर ओवर द डिमांड फॉर होल्डिंग इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी जो डिमांड है, होर्डिंग की जो डिमांड है, ये रिलेटेड नहीं होता है एक्सपेक्टेशन से, या यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कैपिटल हमारे पास मिलेगा। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो अनुमान है कि फ्यूचर में, कि भविष्य में हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, हम वो नहीं बता सकते हैं। बिसाइड्स मनी सप्लाई इज बिलीव्ड टू बी इंटरेस्ट इलास्टिक इन दिस थ्योरी। पर इसके अलावा मनी जो सप्लाई हो रही है वो ये विश्वास करता है, ये मनी इंटरेस्ट इलास्टिक थ्योरी पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट से, और इलास्टिक का मतलब होता है जिस तरह से फैला हो, यानी किस रेशियो में या कितना वो फैलेगा, इंटरेस्ट हमारा कितना बढ़ेगा। 8th पॉइंट, मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो वो मिनिमम होगा। लाइक द क्लासिकल थ्योरी, द नॉन क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो एडमिट्स द पॉसिबल ऑफ जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्लासिकल और न्यू क्लासिकल की तरह यहाँ भी एडमिट होता है कि ये जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यहाँ जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वह जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एंड देयर कैन बी नो मिनिमम लिमिट। और यहाँ पर भी जैसा हमने क्लासिकल थ्योरी में देखा था या कि न्यू क्लासिकल थ्योरी में है, यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। नाउ स्कोप ऑफ द थ्योरी, इसके क्या स्कोप्स हैं। द लोनेबल फंड्स थ्योरी इज ऑल्सो स्टेटेड एसेंशियली इन द ट्रेडिशनल क्लासिकल टर्म्स। इसके जो है क्लासिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इसे देखा है, ये इसे स्टेट किया गया है, एंड इज फाउंडेड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशन। इसमें जो है ये अनरियल होता है, इसकी एजम्पशंस की ये हम डिपेंड नहीं कर सकता, इसकी एजम्पशन यानी पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते ये किस तरीके से होगा। ये फुल एम्प्लॉयमेंट अगर है या अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये अनरियल फॉर्म में होता है, इसकी हम लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बता सकते या नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। न्यू क्लासिकल थ्योरी, द लोनेबल थ्योरी, इसे न्यू क्लासिकल थ्योरी को हम लोनेबल थ्योरी भी बोलते हैं, विच इज स्टेटेड इन रियल एज वेल एज मनी टर्म्स। इसे जो हम स्टेट करते हैं रियल टर्म में या कि फिर मॉनेटरी टर्म्स में, इज एन इम्प्रूव्ड एंड मोर रियलिस्टिक वर्जन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। और ये मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है, ये रियलिस्टिक वर्जन है, यानी ये रियल है। क्लासिकल थ्योरी में जिस तरीके से हमने देखा था कि वो रियल फॉर्म होता है, उसी तरीके से यहाँ ये रियल फॉर्म है मनी का। इट रिकॉग्नाइजेज द एक्टिव रोल ऑफ मनी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और ये जो है ये एक एक्टिव रोल प्ले करता है, ये यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी हमारे आज के समय में। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट होर्डिंग एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। और ये इस तरह के इसकी अकाउंट जो है, इसकी अकाउंटिंग होर्डिंग अगर हम देखें,
या हम इसकी अकाउंट्स को देखें, ये हमारे डिमांड को इफेक्ट करता है, यानी जिस हमारे डिमांड पर भी असर पड़ता है लोनेबल फंड्स का, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारे जो डिमांड है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा टोटली डिपेंड करता है फंड पे, हमारे या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारी लोनेबल फंड जो वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये फैक्टर्स इस पर डिपेंड करता है। नाउ बट बोथ द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल theories आर स्पेशल थ्योरी बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो दो थ्योरी हैं, क्लासिकल थ्योरी या न्यू क्लासिकल थ्योरी, ये स्पेशल थ्योरीज होते हैं जो एजम्पशन और यहाँ पर हम जो फुल एम्प्लॉयमेंट को एज्यूम करते हैं, रॉन्गली रिगार्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, नॉट द इनकम लेवल, और ना ही हम लेवल ऑफ इनकम को देखते हैं, यानी इनकम का क्या स्तर है। एज द इक्विलिब्रेटिंग फोर्स को अगर हम देखें बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड अबव ऑल, यानी सेविंग और इसके इन्वेस्टमेंट को, और या इसके भी ऊपर हम देखें, आर इनडेटर्मिनेट थ्योरीज ड्यू टू देयर नेग्लेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ। और इसलिए यहाँ पर जो है इस दो चीज़ में हमने देखा है, क्योंकि हम इनकम लेवल की इम्पोर्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, और ये इसीलिए यहाँ क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज जो है इसे हम स्पेशल थ्योरीज बताया गया, क्योंकि यहाँ पर इनकम लेवल को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसे नहीं देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कीनेसियन थ्योरी। कीनेसियन थ्योरी पर अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या होता है कीनेसियन थ्योरी, या यहाँ पर क्या बताया गया है। फर्स्ट, डिफाइन ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू Keynes, इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। Keynes ने बताया है, इसका यहाँ जो है इंटरेस्ट को रिवार्ड बताया गया है फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, और कैश जो है पार्टली बेसिस पर मिलेगा। या ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं, वो पार्शियली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नाउ सेकेंड, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इसका नेचर किस तरह का है। अकॉर्डिंग टू Keynes, इंटरेस्ट इज ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। Keynes का जो इंटरेस्ट है ये प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन है, यानी ये मॉनेटरी बेसिस पर होता है। एंड द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये भी और इसकी जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसका जो इंटरेस्ट का थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स से रिगार्डिंग है। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या डिटर्मिनेशन है। According to the Keynesian theory, rate of interest is determined by the equality between demand and supply of money. जैसा मैंने आपको बताया, ये इक्वालिटी करता है, ये डिटरमिन करता है, ये देखता है कि हमारी डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी किस तरह की है। अगर हमारी मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक जैसी है, इक्वल है, तो वो अच्छा है। और अगर इसकी सप्लाई मिसमैच कर रही है, ये इसकी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये लॉस है। पर नॉर्मली जो यहाँ पर देखा गया है वो ये देखा गया है, ये टोटल डिपेंड करता है हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे, यानी किस तरह का डिमांड है और कैसा सप्लाई है। फोर्थ पॉइंट, डिमांड साइड इन द Keynesian थ्योरी। Keynesian थ्योरी के अंदर हम देखते हैं द डिमांड फॉर मनी मीन्स द डिमांड फॉर लिक्विडिटी। अगर मनी की डिमांड है तो लिक्विडिटी की डिमांड है। और द डिमांड टू होल्ड मनी इन कैश फॉर द ट्रांजेक्शन मोटिव, और या कि हम यहाँ पर डिमांड टू होल्ड मनी, यानी हम मनी को होल्ड कर कर रखते हैं, अपने कैश को होल्ड कर कर रखते हैं, ताकि उसका यूज़ हम ट्रांजेक्शन मोटिव से करें, ट्रांजेक्शन पर्पज से करें। ट्रांजेक्शन भी मनी के फॉर्म में हो, यानी फिजिकल मनी के फॉर्म में हो। द प्रिकॉशनरी मोटिव एंड द स्पेकुलेटिव मोटिव। यहाँ पर दो फॉर्म यूज़ किया गया, प्रिकॉशनरी यानी प्रिकॉशन लेंगे, और दूसरा स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेट करना, यानी इसका हम गैम्बल भी इसे बोल सकते हैं। स्पेकुलेट हम एक डिटरमिन करते हैं, या कि हम एक स्पेकुलेशन लगाते हैं, हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि इतना हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही ही हो। फिफ्थ पॉइंट, सप्लाई साइड इन द Keynesian थ्योरी। Keynesian थ्योरी ने बताया है, या Keynesian ने बताया है, द सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड। मनी की सप्लाई जो फिक्स्ड है एंड कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, और इसकी जो कंट्रोलिंग है, इसे जो कंट्रोल किया जाता है वो मॉनेटरी अथॉरिटी इसे कंट्रोल करते हैं। एंड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इनइलास्टिक, और ये जो है परफेक्टली इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, इसकी इंटरेस्ट जो है इनइलास्टिक है, यानी इसका इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है। सिक्स्थ पॉइंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू Keynes के अकॉर्डिंग
इनकम एंड नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इनकम को कंसीडर किया गया है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज द इक्विलिब्रेटिंग फोर्स बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रेटिंग फोर्स है, यानी जिस फोर्स से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, वो होता है हमारा इनकम, यानी हमारे पास कितना पैसा है, किस रेशियो से वो हमारी इनकम आ रही है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन है, यानी मॉनेटरी बेसिस है। ब्रिंग्स इक्वालिटी बिटवीन, और ये इक्वालिटी लाता है, ये बराबरी लाता है किस पे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे, यानी जिस तरह का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी होगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ मनी। मनी का क्या रोल है देखते हैं। Keynes completely departs from the classical as well as neoclassical theories and gave a purely monetary theory of interest. Keynes ने जो है completely depart किया है, इससे नज़रअंदाज किया है, उन्होंने इसे पार्ट कर दिया है, अलग कर दिया है क्लासिकल और नियोक्लासिकल थ्योरी से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया ये प्योरली मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। He considered money both as a medium of exchange as a store of value. उसने दोनों मनी के फॉर्म को कंसीडर किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी हम जो मनी को एक्सचेंज करते हैं, या कि स्टोर ऑफ वैल्यू या मनी जो हम स्टोर करके रखते हैं उसकी वैल्यू, इन दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अबाउट द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेकुलेटिव डिमांड है यानी जो हम अनुमान लगाते हैं मनी का, कि या लोग जो अनुमान लगाते हैं कि किस हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट जो है क्या होगा, या फ्यूचर में हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है हमारा। तो इसके तहत हम स्पेकुलेशन करते हैं, यानी एक अनुमान लगाते हैं। मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, मनी की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। इंटरेस्ट इनएलास्टिक, इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इनएलास्टिक है, यानी एक हद तक ही, इसे हम ज़्यादा फैला नहीं सकते, इंटरेस्ट को हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। एंड स्टेटेड इन स्टॉक टर्म्स रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और या हम स्टॉक में ही अगर करते हैं, या हमारे पास जो स्टॉक है वो भी एक रिलेटेड पॉइंट ऑफ टाइम के बाद है, या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम देखते हैं कि हमारी मनी की जो वैल्यू है, या फ्यूचर में जो है, या कितने समय में हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पीरियड के अकॉर्डिंग और कितना मिलेगा। 8th पॉइंट, मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की मिनिमम लेवल क्या होगी, या इसका क्या मिनिमम लेवल है। An important feature of the demand of money function is the liquidity preference theory of interest is the liquidity trap. इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है डिमांड फॉर द मनी फंक्शन, यानी मनी की क्या डिमांड है, मनी किस रेशियो में लोग चाह रहे हैं, और ये डिपेंड हमारा करता है इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट इज द लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट जो है एक तरह का जाल है कि लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करें। दिस एम्प्लाइज दैट द डिमांड ऑफ मनी कर्व बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक एट ए सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इस तरीके से हम बता सकते हैं, ये इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ जो मनी की डिमांड कर्व है वो इलास्टिक हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी वो लचीलापन जो होता है वो लचीला होता है एट ए सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो सर्टेन हो, जो फिक्स्ड हो कि हमें पर्टिकुलर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनकम मिलने वाला है, या हमारी रेट ऑफ रिटर्न होने वाली है, विच इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट फॉल बिलो दिस मिनिमम लिमिट, यानी इसके नीचे, एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे जो वो नहीं गिरेगा या उसके नीचे नहीं आएगा। तो जो मेनली जो साइकोलॉजी है, जो मैंने हमारे दिमाग में आता है या नॉर्मल पीपल के दिमाग में आता है, यही आता है कि इस पर्टिकुलर रेट के नीचे जो हमारी मनी की वैल्यू नहीं गिरेगी या नहीं आएगी। नाउ स्कोप ऑफ द थ्योरी, Keynes considered the possibility of underemployment equilibrium and therefore the Keynesian theory of interest has a larger scope. Keynes ने कंसीडर किया है, उन्होंने ये पॉसिबिलिटी दिया अंडर एन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है। किनीसियन ने अपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में बताया कि उसमें लार्ज स्कोप है, दैट इज इट इज एप्लीकेबल इन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट में, यानी सारे लोग रोजगार में हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, या फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा कम है। इस कंडीशन में हम देखते हैं इस स्कोप की थ्योरी, यहाँ काफ़ी हद तक इंटरेस्ट लोगों को मिलता है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, अगर इसके हम शार्प कॉन्ट्रास्ट को देखें टू द क्लासिकल रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज एक्सक्लूसिवली ए मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ जो
मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सक्लूसिवली कंसीडर किया जाता है, वो प्योर मॉनेटरी फेनोमेनन है और ये एक लिंक बनाता है प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वैल्यू के बीच कि मनी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, यानी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें फ्यूचर में मनी हमारा वापस मिलेगा, एंड रिकॉग्नाइजेस द डायनामिक रोल ऑफ मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। और इस मनी का रोल जो है वो डायनामिक रोल होता है स्टोर ऑफ वैल्यू में, यानी हम जो मनी स्टोर करके रखते हैं या हम जो मनी स्टोर करके रखते हैं उसकी वैल्यू किस रेशियो में होगी। नाउ अगेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लोनेबल फंड्स थ्योरी। फिर से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो हमारा लोनेबल फंड्स थ्योरीज के एक डिस्टिंक्ट है, अलग है इससे, which like the classical theory is basically a reformulation of the saving। और क्लासिकल थ्योरी जो हमारा रिफॉर्मुलेशन यानी उसके फार्मूले उसे हम फिर फार्मूलेट करते हैं, उसे नई तरीके से फिर हम लाते हैं। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ होल्डिंग एंड बैंक मनी। हम जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं होल्डिंग्स और बैंक मनी, बैंक में जो पैसा है वो अलग होता है। द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज अ मोर जनरल थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये बहुत ही जनरल थ्योरी है। पहले जो हम लोगों ने दो थ्योरी देखा था, क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी पे, एज वेल एज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होता है या कम, जब फुल एम्प्लॉयमेंट से सिचुएशन कम हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। However, the Keynesian theory is not a complete theory। Keynesian theory की जो है ये complete theory नहीं है, since it ignores the role of real factors, क्योंकि इसने जो है real factors को ignore किया है। It is also an indeterminate theory। ये जो है indeterminate theory है, since it fails to consider the effects of changes in the income level। क्योंकि ये जो है ये इसका असर पड़ता है इनकम लेवल पे, क्योंकि इसीलिए क्योंकि लोगों के इनकम लेवल जो है कम या ज़्यादा ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कभी उनके इनकम लेवल कम हो जाती है, कभी उनके इनकम लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो इस पर हम फोकस करते हैं। सो दैट्स ऑल ऑफ द डे। हमने यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखा कि किस तरीके से थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट काम करता है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, और तीन तरह के हमने थ्योरी को डिटेल में पढ़ा। हमने क्लासिकल थ्योरी को देखा, हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी को देखा, उसके साथ साथ हम कीनीजियन थ्योरी को देखा। सो थैंक यू एवरीवन हैविंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू माय लेक्चर। So please, I request you all that like the video, subscribe and share this video so that many students can get benefit from this source of medium or from this lecture. So again, thank you everyone.